हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 का भूगोल का अध्याय 4 जलवायु, जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है। यानी देखा जाए तो एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए जो है कक्षा 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 क्लाइमेट काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लाइमेट जो कि एग्जाम व्यू से भी महत्व रखता है। इसमें आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चनों को जो है विस्तार पर चर्चा करेंगे और इसको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन में है क्या। त्रिपाण सेंटर का ये मानना है कि अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से याद कर लेते हो, तो करीबन जो है आपका पूरा चैप्टर जो है कवर हो जाएगा। तो कहते हैं कुछ क्वेश्चन करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है और क्या ज़रूरी है। चलिए देखते हैं हमारा आज क्वेश्चन क्या है। Next, ninth question to according to the climate chapter, class 9 geography. The ninth question is the most important. What are the variation in the precipitation in India? There is a most important question. What are the variation in the precipitations in India? There is a most important here. The answer first point here. There are variation not only in the form and types of the precipitation, but also in its amount and seasonal distribution. You know that the first point is clear here. There are variation not only in their form and types of the precipitation, but also in the amount and the seasonal distribution. The B point here, the rest of the country receive a moderate rainfall. The rest of country receive a moderate rainfall, and the snowfall in there is a restricted to the Himalaya region. You know that the snowfall in there is restricted here Himalaya region. And C point here, the annual precipitation is a varies from to over 400 centimeters Meghalaya to the less than 10 centimeters Ladakh and the western Rajasthan. I repeat again, see here, the annual precipitation varies from over 400 centimeters in Meghalaya to the less than 10 centimeters Ladakh and western Rajasthan. The D here, the wings to be a nature of monsoon, the annual rainfall in the highly variable from year to year. And variability is a high in the region of the low rainfall, such as the part of Rajasthan, Gujarat and the leeward side of the West Ghat. There is an important here. The opening of the nature of the monsoon, the annual rainfall highly variable from year to year. And variability is a high to region of low rainfall such as the part of Rajasthan and Gujarat. And the last point here, the most part of country receive a rainfall from June to September. But some part like the Tamil Nadu is the coastal get most of its rains during the October and the November. The important point here, the most part of the country receive a rainfall from June to September. But some part like the Tamil Nadu is the coastal get most of the rain during October and November. अगला जो है 9th क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9th क्वेश्चन ये दर्शाता है कि भारत में वर्षावन में क्या विभिन्नताएं हैं, यानी प्रेसिपिटेशन कैसे होती हैं। तो भारत में वर्षावन में क्या विभिन्नताएं देखने को मिलता है। तो इसी बात पे जो है हम यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो है वर्षण में क्या विभिन्नता देखने को मिलती है। तो पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि वर्षा के रूप में, प्रकार में ही नहीं बल्कि इसके मात्रा और मौसमी वितरण में भी विभिन्नताएं होती है। यानी पहला पॉइंट साफ कर देता है कि वर्षा के रूप और आकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा और मौसम वितरण में भी काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलता है। कहते हैं शेष देश में सामान्य वर्षा होती है, यानी पूरे देश में देखा जाए शेष देशों में तो सामान्य वर्षा होती है और हिमपात हिमालय क्षेत्र तक ही सीमित होती है, क्योंकि जो रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होती है, सिर्फ हिमालय क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। ठीक है, मेघालय में वार्षिक वर्षा जो होती है 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है, क्योंकि आपको पता है अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है तो आप चेरापूंजी मेघालय के नाम ले सकती हो, क्योंकि यहाँ पर 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और देखा जाए तो जो है मेघालय क्षेत्र में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है। तो आप समझ सकते हो कितने अधिक रेनफॉल का क्षेत्र है ये।
कई बार जो है ये क्वेश्चन कई जगहों पर पूछा गया है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र का नाम बताइए। तो ये ऑप्शन में या तो मेघालय होगा या आपका चेरापूंजी होगा। तो दोनों का मतलब एक ही क्षेत्र है, ठीक है। तो आप मेघालय भी बोल सकते हो या चेरापूंजी भी कह सकते हो, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। और देखा जाए दूसरे क्षेत्र में जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक कम होती है, वो लद्दाख है। यानी लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यानी यहाँ पर सूखा का जो है मार झेलना पड़ता है। जहाँ पर देखोगे तो कहते हैं लद्दाख में और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो कहते हैं वहाँ पर सिर्फ फुहारे होते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि 10 सेंटीमीटर इसी बात की ओर संकेत कर रहा है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो कहते हैं मानसून की प्रकृति के कारण वार्षिक वर्षा वर्ष दर वर्ष अत्यधिक परिवर्तनशील होते रहते हैं। यानी देखा जाए तो ईयर बाय ईयर जो वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है वो अधिक बदलाव की तरफ इशारा करता है। और कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्से और पश्चिमी घाटों के जो है पवन वहीन भागों में परिवर्तनशील अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर पवनें जो है गलत दिशाओं में बह रहे होते हैं, जिसकी वजह से राजस्थान और गुजरात में वर्षा होती ही नहीं है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान और गुजरात में वर्षा होती भी है तो 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो ये आप समझ सकते हो कि ये क्षेत्र जो है काफ़ी जो है सूखे के चपेट में हर समय रहती ही रहती है। यदि हम अंतिम पॉइंट की बात करें तो कहते हैं देश के अधिकांश भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। यानी भारत के क्षेत्र में देखा जाए तो कहते हैं अधिकांश भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु तट जैसे कुछ भागों में अधिकांश वर्षा अक्टूबर नवंबर के दौरान होता है। और आपको पता है अक्टूबर नवंबर जो है सर्द ऋतु का समय होता है। तो तमिलनाडु देखिए सर्द ऋतु के चपेट में तो होता ही होता है, प्लस वर्षा के भी चपेट में आ जाता है, क्योंकि काफ़ी जो है इसकी दबाव अधिक पड़ता है, बाद में पड़ता है। इसलिए तमिलनाडु में जो है अक्टूबर नवंबर में जो है बरसात होती है। और बाकी देशों में जो है जून से सितंबर के मध्य ही जो है बरसात होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था यहाँ पर एग्ज़ाम व्यू से। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, समझ गए हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। क्योंकि कहते हैं दूसरे की भलाई करना ही कहते हैं अपना भलाई करने के समान होता है। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे 24 घंटे के लिए लगा देना है। जो बच्चे आपके कांटेक्ट में होंगे वो ज़रूर देखेंगे वीडियो और उनको समझ में भी आएगा। तो आपके कारण किसी दूसरे बच्चे को वीडियो मिलता है और समझ जाते हैं और एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। तो कहते हैं इससे अधिक सुखद अनुभव आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जो है आपको 10वीं क्लास के भी वीडियो जो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और कहते हैं जो बच्चे 8th क्लास में हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वो 9th क्लास में आप जाने वाले हैं, ठीक है। तो उनके लिए 9th क्लास में जो है ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रखेगा, क्योंकि इन सारे क्वेश्चनों में जो है पूरे चैप्टर का निचोड़ है। यानी ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो समझ लीजिए कि आपने पूरे चैप्टर को कर लिया है। और ये तब होगा जब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में आप सेव कर लोगे।